قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس چیئرمین اسلم بھوتانی کی صدارت میں جاری۔ ثاقب نثار کے بیٹے کی آڈیو لیک کی تحقیقات کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ تحقیقات شفاف ہوں گی۔ آڈیو کی فورنزک تصدیق FIA کے سپرد۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس میں سپریم کورٹ کو ریکارڈ دینے یا نہ دینے کا فیصلہ بھی اسی کمیٹی نے کرنا ہے۔ اسلم بھوتانی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا لندن میں اپنے قیام میں ایک دن اضافے کا فیصلہ۔ قائد محمد نواز شریف کی ہدایت پر اہم سیاسی و قومی امور پر مشاورت ہوگی۔ وزیراعظم برطانیہ کے کنگ چارلس سوئم کی رسم تاج پوشی کے لیے برطانیہ آئے تھے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ ہم نے اپنے سابقہ دور حکومت میں تعلیمی میدان کے لیے اہم منصوبے شروع کیے۔ 2018 کے بعد ترقیاتی منصوبوں کو بند کر دیا گیا۔ چین نے 29 ارب ڈالر کے منصوبے پاکستان میں شروع کیے۔ عمران خان کی کابینہ نے سی پیک منصوبوں کے خلاف منفی بیانات دیے۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا نمل میں تقریب سے خطاب۔ چیئرمین PTI نے بغیر ثبوت حاضر سروس سینئر فوجی افسر پر الزامات لگائے۔ من گھڑت بے بنیاد اور بدنیتی پر مبنی الزامات انتہائی افسوسناک، قابل مذمت اور ناقابل قبول ہیں۔ 1 سال سے فوجی اور انٹیلیجنس اہلکاروں کو سیاسی مقاصد کے لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جھوٹے الزامات کا سلسلہ بند نہ ہوا تو قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتے ہیں ISPR۔ عمران خان کا ڈرامہ ان کی اپنی جماعت کے صدر نے ہی بے نقاب کیا۔ خان صاحب یہ ڈرامہ چلانے سے پہلے اپنے صدر کو اسکرپٹ تو بھیج دیتے۔ وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر بلال اظہر کیانی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے افغان وزیر تجارت نور الدین عزیز کی سربراہی میں وفد کی ملاقات۔ دونوں ممالک تجارت اور سرمایہ کاری کے ذریعے ترقی کر سکتے ہیں، مراد علی شاہ۔ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات وقت کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں، افغان وزیر تجارت۔ رحیم یار خان کچا آپریشن کا 1 ماہ مکمل۔ منصوبہ بندی اور حکمت عملی کے تحت دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ کچا کراچی کا بیشتر علاقہ دہشت گردوں سے پاک۔ جزیرہ نما کچا رجوانی کے گرد گھیرا مزید تنگ۔ ٹھکانے تباہ، متعدد گرفتاریاں، 3 ہلاک۔ شہدائے پاکستان کو سلام۔ وطن عزیز کے لیے جانیں قربان کرنے والوں کے خاندان کو قوم کا خراج عقیدت۔ نجر سپاہی گلزار احمد نے 15 اپریل 2018 کو کرم جنسی میں شہادت کا بلند رتبہ پایا۔ سپاہی گلزار احمد شہید تھے۔ سوگران میں والدین، 3 بیٹے اور بیوہ چھوڑے۔ سوڈان میں حالات بدستور کشیدہ، جنگ بندی کے بغیر مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں۔ خرطوم میں مستقل جنگ بندی کے بغیر صریح الحرکت فورس کے ساتھ سمجھوتہ ممکن نہیں۔ موجودہ بحران کو حل کرنے کا بہترین طریقہ پرامن راستہ ہے۔ سربراہ سوڈانی فوج جنرل عبدالفتاح البرہان کا القاہرہ نیوز کو انٹرویو۔ اسرائیل کی غزہ میں 2 مختلف مقامات پر بمباری، 13 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ شہید ہونے والوں میں اسلامک جہاد کے 3 سینئر کمانڈرز بھی شامل۔ اسرائیلی طیاروں کی رات گئے رہائشی علاقوں پر بمباری۔ غزہ کے ساتھ 2 کراسنگ پوائنٹ بھی بند، اشیاء کی ترسیل معطل۔ G20 کی آڑ میں مودی کی خون سے کھیلی ہوئی ہولی سب پر آشکار۔ مذہبی اجتماع، تہواروں اور جنازوں پر پیلٹ گنز کا اندھا دھند استعمال۔ 2019 سے 21 کے درمیان 6221 کشمیری پیلٹ گنز کی وجہ سے زخمی، جبکہ سینکڑوں بینائی کھو بیٹھے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل۔ کانگو کے جنوبی صوبے کیوو میں 4 روز سے بارشوں سے سیلاب کی صورتحال کا سامنا۔ 400 افراد ہلاک، 200 زخمی، 100 سے زائد افراد تاحال لاپتہ۔ پانی رہائشی علاقوں میں داخل، امدادی کاموں کے دوران لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری۔ آسٹریلیا میں موسم سرما کے آغاز سے قبل ہی سردی نے دستک دے دی۔ جنوبی مشرقی علاقوں میں یالہ باری اور اچانک برف باری۔ دارالحکومت کینبرا میں بھی شدید برف باری، درجہ حرارت گر گیا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں رواں ہفتے دن کے درجہ حرارت میں بدتریج اضافے کا امکان۔ جنوبی علاقے گرمی کے زیر اثر رہیں گے۔ محکمہ موسمیات کی کسانوں کو موسمی حالات کے مطابق فصلوں کو پانی دینے اور عوام کو گرمی سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر
इख्तियार करने की हिदायत। कोयटा में 19 साल बाद नेशनल गेम्स 34वें नेशनल गेम्स का आगाज कल से कोयटा में होगा। मुकाबले 30 मई तक होंगे। इंतजामात मुकम्मल। नेशनल गेम्स की मशल का सफर जारी। कराची से पेशावर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। इस्लामाबाद की जानिब रवा दवा। गेम्स का ऑफिशियल सॉन्ग भी जारी कर दिया गया। चल पड़े हैं कारवां, छूने को आसमां, हार जीत का गम किसे, जश्न का है। खेलों की दुनिया का ऑस्कर लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लायनल मेसी एजाज ले उड़े। खवातीन में जमैका की एथलीट शैली एन फ्रीजर प्राइस साल की बेहतरीन स्पोर्ट्स वुमेन करार पाई। कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने के बाद अर्जेंटीना की टीम दुनिया की बेहतरीन टीम। स्पेन के टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर करार। दुनिया का सबसे बड़ा रनिंग इवेंट विंग्स फॉर लाइफ वर्ल्ड रन चैरिटी रेस। दुनिया भर से 2 लाख से जायद एथलीट्स की शिरकत। फिनिश लाइन के बगैर हुई दौड़ 158 ममालिक में बैक वक्त शुरू हुई। इस साल की दौड़ का मकसद रीढ़ की हड्डी की तहकीक के लिए फंड्स इकट्ठा करना था। जापान के जोको फोर्डकोडा और पोलैंड की कासा सियाकोडा का कामयाब रही। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं मुकद्दस इफ्तिखार और मैं हूं शाहिद नसीम। अहम खबरें आपने मुलाहिजा की। खबरनामे का बाकायदा आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी का इजलास असलम भूतानी की सरबराही में जारी है। इजलास से खिताब करते हुए असलम भूतानी ने कहा कि कौमी असम्बली ने हमें साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक की तहकीकात की जिम्मेदारी सौंपी है। कमेटी ऑडियो लीक पर शफाफ तहकीकात करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को रिकॉर्ड देने या न देने का फैसला भी इसी कमेटी ने करना है। कमेटी ने वजारत दाखिला को ऑडियो के फॉरेंसिक ऑडिट की हिदायत कर दी है। नाज़रीन, अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी का इजलास असलम भूतानी की सरबराही में जारी है। इजलास से खिताब के दौरान असलम भूतानी ने कहा कि कौमी असम्बली ने हमें साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक की तहकीकात की जिम्मेदारी दी है। कमेटी ऑडियो लीक पर शफाफ तहकीकात करना चाहती है। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट को रिकॉर्ड देने या ना देने का फैसला भी इसी कमेटी ने करना है। कमेटी ने वजारत दाखिला को ऑडियो के फोरेंसिक ऑडिट की हिदायत भी कर दी है। कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी का इजलास इस वक्त जारी है, जिसकी सरबराही असलम भूतानी कर रहे हैं। इजलास से खिताब के दौरान असलम भूतानी का कहना था कि कौमी असम्बली ने हमें साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक की तहकीकात की जिम्मेदारी दी है। हमारी नुमाइंदा मरियम मलिक इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे इस हवाले से मजीद अपडेट हासिल करेंगे। मरियम, हमें इस हवाले से मजीद अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल। स्पीकर कौमी असम्बली की कायम करदा खसूसी कमेटी का इजलास जो है चेयरमैन असलम भूतानी की ज़ेर सदारत हुआ है, जिसमें साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की मुबैना ऑडियो लीक के मामले पर गौर किया गया है। कमेटी ने साबिक चीफ जस्टिस के बेटे की ऑडियो लीक की तहकीकात FIA से कराने के लिए वजारत दाखिला को खत लिखने का फैसला किया है। इसी के साथ साथ कमेटी वजारत दाखिला को FIA से मामले की तहकीकात के हवाले से हदायत भी जारी करेगी। कौमी असम्बली की जो खसूसी कमेटी है उसने FIA से 10 रोज में रिपोर्ट भी तलब कर ली है। खसूसी कमेटी ने जो है साबिक चीफ जस्टिस के बेटे नजम साकिब को कमेटी में तलब करने का भी फैसला किया है। इस पर गौर किया जा रहा है। इसी सिलसिले में चेयरमैन असलम भूतानी ने कहा है कि नजम साकिब और टिकट होल्डर कमेटी में आकर मामले पर मौक़िफ़ दे सकते हैं। दौरान इजलास नजम साकिब को पहले बुलाया जाए या FIA की तहकीकात के बाद। इस हवाले से कमेटी अरकान जो हैं उनमें अभी इस चीज़ पर फैसला नहीं किया गया। चेयरमैन कमेटी ने कहा है कि तहकीकात से इंसाफ के जो तकाजे हैं वो पूरे होंगे। ये तहकीकात उनके हक में की जाएगी। हम किसी इदारे या शख्स के खिलाफ नहीं हैं, खरीद और फरोख्त के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी असेंबली से कार्रवाई का रिकॉर्ड मांगा है। इसी सिलसिले में राय है कि कमेटी इस मामले पर भी जो है वो फैसला करेगी। दौरान इजलास जो है चीफ जस्टिस के बेटे साकिब निसार टिकट होल्डर्स की कमेटी में तलबी पर कमेटी मेंबरान में जो है भी वो फैसला नहीं हो सका। इसके ऊपर जो है वो मशावरत अभी जारी है। और इसी के साथ साथ इसके जो मामले पर है खसूसी कमेटी का जो इन कैमरा जो इजलास है वो भी जुम्मे को बुलाए जाने के लिए जी है उस पर भी गौर गौस हो रहा है। जी गौर किया जा रहा है। मरियम मलिक हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लंदन में अपने क़याम में 1 दिन का इजाफा कर दिया है।
वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने अपने ट्वीट में कहा कि फैसला कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की हिदायत पर अहम सियासी और कौमी उमूर पर मुशावरत के लिए किया गया। वज़ीर आज़म कल वतन वापस रवाना होंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ बरतानिया के किंग चार्ल्स स्वयं की रस्म ताजपोशी के लिए बरतानिया आए थे। पाक फौज ने चेयरमैन पीटीआई के हाजिर सर्विस सीनियर फौजी अफसर पर इल्जामात पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए इसे इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद करार दिया है और मुतालबा किया है कि इमरान खान कानूनी रास्ते का सहारा लें और झूठे इल्जामात लगाना बंद कर दें, वरना इदारा झूठे और गलत बयानात और प्रोपेगेंडे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का हक महफूज रखता है। ISPR से जारी बयान में कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई ने बगैर किसी सबूत के एक हाजिर सर्विस सीनियर फौजी अफसर पर इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद इल्जामात आयद किए। ये मन घड़त और बदनीयती पर मबनी इल्जामात इंतहाई अफसोसनाक, काबिल मजम्मत और नाकाबिल कबूल हैं। ISPR का कहना है कि गुज़श्ता एक साल से ये मुसलसल वतीरा रहा है जिसमें फौजी और इंटेलिजेंस एजेंसियों के अहलकारों को सियासी मकासद के हुसूल के लिए इश्तियाल अंगेजी और सनसनीखेज प्रोपेगेंडे के जरिए निशाना बनाया जाता है। हम मुतल्लिका सियासी रहनुमा से मुतालबा करते हैं कि वो कानूनी रास्ते का सहारा लें और झूठे इल्जामात लगाना बंद करें। इदारा वाज़े तौर पर झूठे और गलत बयानात और प्रोपेगेंडे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का हक महफूज रखता है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि यकीनन अवाम तुम्हारे झूठ, साजिश और तमाशे जान चुकी है, इसलिए नहीं निकलेगी। तुम फौरन फंडिंग, तोशाखाना चोरी और अपनी बेटी को जाहिर न करने के जुर्म में गिरफ्तार हो गए। इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि जो तुम्हारे खिलाफ केस हैं तुम उन सब में मुजरिम हो, तुम जहनी मरीज हो, तुम्हारा जहन शैतान का घर है जो हर वक्त साजिश के लिए तैयार रहता है। उन्होंने कहा कि फ़ौज उसकी नहीं होती जो फ़ौज के शहीदों के खिलाफ गलीज़ मुहिम चलाता है। अवाम उसकी नहीं होती जो मुल्क के खिलाफ साजिश करता है, अवाम को भूखा और बेरोज़गार करता है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि FIR पंजाब की तुम्हारी अपनी हुकूमत ने ना काटी, तहकीकात तुम्हारे अपने पार्टी के सदर और वज़ीर आला ने नहीं की। कातिलाना हमले के इल्ज़ाम नहीं, सबूत अदालत लेकर जाओ। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा है कि बहरूपिये को मालूम होना चाहिए कि हुकूक सिर्फ आइन और कानून के तहत हैं। इल्ज़ाम तराशी और बुहतान बाजी कानूनी हक है और ना ही आइनी। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि हर शहरी अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का कानूनी हक रखता है। इसका तकाजा है कि थाने अदालत जाए और सबूत फराहम करे। ये आइनी हक ट्विटर, रैली निकालने और जलसों से नहीं मिलता। इमरान खान सबूत कानूनी फॉरम पर पेश करें। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इमरान नियाज़ी ने 35 पंक्चर, 10 अरब, साइफर, अमरीकी साजिश जैसे इल्ज़ामात आयद किए लेकिन सबूत नहीं दिए। अगर सबूत हैं तो अदालत क्यों नहीं जाते हैं? वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बिलाल अजहर कियानी ने कहा है कि इमरान खान का ड्रामा उनकी अपनी जमात के सदर ने ही एक्सपोज कर दिया। बिलाल अजहर कियानी ने अपने ट्वीट में कहा कि खान साहब को चाहिए था कि यह ड्रामा चलाने से पहले उसका स्क्रिप्ट अपने सदर को तो भेज देते। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने अफ़वाज पाकिस्तान के हवाले से इमरान खान के इल्ज़ामात की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि इमरान खान अफ़वाज पाकिस्तान के हवाले से अवाम में बददिली पैदा करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। अफ़वाज पाकिस्तान हमारी सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं और हमें अपनी फ़ौज पर फ़ख्र है। मुसल्लह अफ़वाज की तरफ से ISPR ने स्टेटमेंट जारी की। पिछले एक साल से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ दूसरे लीडर, जिस तरह हमारी जो प्राइम इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ और खुसूसी तौर पे एक बड़े ही सीनियर अफसर के खिलाफ और इदारे के हवाले से लोगों के जहनों में खदशात और बदजनी पैदा कर रहे और अवाम और मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान एक खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पे कौम अपनी मुसल्लह अफ़वाज पर मुकम्मल यकीन रखती है और एक ऐसा एतमाद का रिश्ता है कि मुसल्लह अफ़वाज अपनी जानें देती है मुल्क और कौम के लिए। हमारी मुल्क और कौम की सलामती और सिक्योरिटी की ज़ामिन है ये मुसल्लह अफ़वाज, इसलिए कौम को इन पर नाज है, फ़ख्र है। आप ऐसी बदजनी पैदा कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की जड़ें काट रहे हैं और पाकिस्तान की जड़ों के ऊपर वार कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये टाइम है कि ऐसे कामों की और ऐसे अवामिल की ना सिर्फ मैं सरकुबी की जाए, उसकी शदीद मजम्मत की जाए, उसको रोका जाए और तमाम कौमी लोगों को, तमाम मुद्दे लोगों को आगे आना होगा। ऐसे अवामिल को रोकना होगा जो पाकिस्तान को कमज़ोर करे और पाकिस्तानी अवाम और मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान ऐसे मैं ये समझता हूँ कि रिश्तों के अंदर बगाड़ और दरार लाने की कोशिश की जाए
उसको रोकना होगा, उसकी मजम्मत करनी होगी और इसके लिए सब अपना रोल अदा करें। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि चीन ने 29 अरब डॉलर के मंसूबे पाकिस्तान में शुरू किए। इमरान खान की काबीना ने सी पैक मंसूबों के खिलाफ मनफी बयानात दिए। नंबल यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी ने कहा कि 2013 और 18 में तालीमी मैदान के लिए अहम मंसूबे शुरू किए। उन्होंने कहा कि 2013 के हमारी काविशों की बदौलत नौजवानों को आला तालीम तक रसाई मुमकिन हुई। मुल्क के दूर दराज इलाकों में यूनिवर्सिटीज़ के नए कैंपस बनाए गए। उन्होंने कहा कि 2018 के बाद तरक्याती मंसूबों को बंद कर दिया गया। वो मंसूबा जिसने 70 करोड़ से मुकम्मल होना था, अब 2.25 अरब रुपए के साथ मुकम्मल होगा। और ये कहानी ये सिर्फ 2 मंसूबों की नहीं, ये तो मैंने आपको वो 2 मंसूबे गिनाए जिनका ताल्लुक मेरे ज़िले से है। ये कहानी कराची से लेकर पेशावर तक सैकड़ों मंसूबों की है कि आज कई 100 अरब रुपए हम फालतू खर्च करेंगे महज इस बिना पर कि वो मंसूबे एक हुकूमत के दौर में शुरू हुए थे और जो अफलातून आए थे बाद में, उनका ख्याल था कि हर मंसूबे में चूँकि इन्होंने खूब लूट मार की है तो ये सब मंसूबे बंद कर दो, इनकी इंक्वायरियाँ करो। और उसके बाद निकला भी कुछ नहीं, लेकिन कई 100 अरब रुपए की फालतू लागत पाकिस्तान के गले पड़ गई। यही अंजाम तकरीबन सी पैक का हुआ। पाकिस्तान और अमेरिका ने सरकारी और निजी सतह पर ग्रीन और काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में नए कारोबारी मौक़ों के फ़रोग़ के लिए रोड मैप तैयार करने पर इत्तफ़ाक़ किया है। इन उमूर पर इत्तफाक वज़ीर बराए तवानाई मुसद्दक़ मलिक के दौरा अमरीका के दौरान US ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी के इंडो पैसिफिक के रीजनल डायरेक्टर वेरन अफाइक और कंट्री मैनेजर के साथ मुलाकात के दौरान हुआ। मुलाकात में पाकिस्तान को आलमी वैल्यू चीन में शामिल करने के मुख्तलिफ तरीक़ों पर तफसीली गुफ्तगू और तजावीज़ पर भी गौर किया गया। वफाकी वज़ीर मुसद्दक़ मसूद मलिक ने कहा है कि पाकिस्तान अमरीका के साथ मिलकर साफ और ग्रीन एनर्जी की जानिब मुंतकली को आगे बढ़ाना चाहता है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि आइडियाज़ को अमली जामा पहनाते हुए मंसूबों को मुकम्मल किया जाए। सुर्ख फीते की जगह सरमायाकारों और कारोबारी बरादरी का भरपूर इस्तकबाल किया जाए। पाकिस्तानी कारोबारी बरादरी का एक वफ्द मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले हम मंसूबों के साथ आइंदा साल की पहली सहमाही के दौरान मैथिन में कमी की टेक्नोलॉजी और बायोमैथिन को खाद में तब्दील करने की टेक्नोलॉजी का मुताला करने के लिए अमरीका का दौरा करेगा। अमरीकी वफ्द की जानिब से पाकिस्तान में ग्रीन एमोनिया, ग्रीन हाइड्रोजन और काबिल तजदीद ज़राए से मुतालिक मंसूबों पर काम करने में दिलचस्पी का इजहार किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की सदारत में काबीना की इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इस्लामाबाद में इजलास हुआ। इजलास में दिल के 4 नए स्टंट की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मुकर्रर करने की वज़ारत कौमी सेहत खिदमात समरी की मंजूरी दे दी गई। ECC ने शगरी के शिमाली इलाके में तेल की तलाश के लिए 15.88 मुरबा किलोमीटर इजाफी रकबा देने की भी मंजूरी दी। इजलास में वज़ारत ख़ारजा को रवा माली साल के सालाना बजट में माली खसारा पूरा करने के लिए 8.4 अरब रुपए देने की भी मंजूरी दी गई। नए जमशुदा अजला में तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए वज़ारत हाउसिंग एंड वर्क्स को 500 करोड़ रुपए देने की भी मंजूरी दी गई। इजलास को नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से भी ब्रीफ किया गया। नाज़रीन, कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की सदारत में इस वक्त जारी है और इस इजलास की कार्रवाई के हवाले से भी हम आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। आपको बताएं कि फ़िलहाल कौमी असम्बली का इजलास जारी है, जिसकी सदारत कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ कर रहे हैं। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेरे सदारत इस वक्त जारी है। मज़ीद तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इस वक्त आपको बताएं कि कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेरे सदारत जारी है। इजलास के एजेंडे के हवाले से भी आपको मज़ीद आगाह करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताएं कि आईन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली की मुनासबत से 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी आईनी कन्वेंशन का इनेकाद 10 मई से कौमी असम्बली में किया जा रहा है। इस हवाले से जानते हैं समीउल्लाह की यह रिपोर्ट। 10 मई से शुरू होने वाले बैनुल अक़वामी कन्वेंशन में 17 से ज़ायद मुल्कों के स्पीकर्स, डिप्टी स्पीकर्स, माहिर कानूनदान, पार्लिमानी वफूद समेत दीगर शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद शिरकत करेंगे। कन्वेंशन का मौजू
मेरा आइन मेरी आज़ादियों की ज़मानत है। बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन में स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की खुसूसी दावत पर सऊदी अरब के मजलिस शूरा के चेयरमैन की सरबराही में सऊदी पार्लिमानी वफ्द शिरकत करेगा, जबकि श्रीलंका, अजरबैजान, बेल्जियम, जमहूरिया किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान जैसे नामवर मुल्कों के पार्लिमानी वफूद चेयरमैन, डिप्टी स्पीकर्स की सरबराही में शिरकत करेंगे। मुत्तहिदा जमहूरिया तंजानिया, कीनिया, ओमान और ईरान की नुमाइंदगी इनके मुतलका कमेटियों के चेयरपर्सन्स करेंगे, जबकि अमरीका और बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी नज़ाद पार्लियामेंटेरियंस भी कन्वेंशन में शरीक होंगे। The objective of this convention is to bring together parliamentarians, legal experts and scholars from different countries to exchange knowledge and ideas, discuss challenges and opportunities related to constitutional conventions, promote cooperation and collaboration between different countries and regions. 2 रोज़ा कन्वेंशन में मुख्तलिफ सेशंस होंगे, जिसमें इख्तियारात की अलहदगी, कानून साजी और अदालती अफ़ाल में तवाज़ुन के मौजू पर बहस होगी और इस बात का जायज़ा लिया जाएगा कि आइन किस तरह बहरानों जैसा कि वबाई अमराज, कुदरती आफात और सियासी बदअमनी से पैदा होने वाले चैलेंजों का मुकाबला कर सकता है। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी का इजलास असलम भूतानी की सरबराही में हुआ। उन्होंने हमारे पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू भी की है, जो आपके साथ शेयर करेंगे। पार्लियामेंट ने जिम्मेदारी दी है हमारी 10 रुकनी स्पेशल कमेटी को, उसमें हमने FIA से कहा है कि हमें उस ऑडियो लीक्स का फॉरेंसिक करके दे, ऑथेंटिसिटी कि वो जेन्युइन है कि नहीं है, और जब वो आएगी उसके बाद हम आपस में डेलिब्रेशन करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो दूसरी पार्टी है जिसमें साबिक चीफ जस्टिस साहब हैं या उनके साहबजादे हैं या जो कोई टिकट होल्डर हैं, वो भी आके अपना मौक़िफ़ दें, क्योंकि उनको सुने बगैर एक तरफ़ा कार्रवाई होना मुमकिन नहीं है और न होनी चाहिए। तो यकीनन उनको भी हम गुजारिश करेंगे कि वो भी इस कमेटी में आके अपना मौक़िफ़ दें, लेकिन वो हम 12 तारीख को हमारी इन कैमरा एक मीटिंग हो रही है, उसके बाद हम उस बारे में आपको बताएंगे। आज की कार्रवाई ये थी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को इस स्पेशल कमेटी ने डायरेक्शन दी है कि FIA को कहे कि इस ट्रांसक्रिप्ट की ऑथेंटिसिटी हमें बताए। दूसरा हमें जो टास्क दिया था इस कमेटी को, वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने रिकॉर्ड मांगा है, तो ये कमेटी डिसाइड करके पार्लियामेंट को बताए कि रिकॉर्ड देना है नहीं देना है, क्योंकि ये पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी है। साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक की तहकीकात की जिम्मेदारी दी गई है, ये कहना था असलम भूतानी की जानिब से। आपको बताएं कि कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी का इजलास असलम भूतानी की सरबराही में हुआ है। इसके बाद पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक की तहकीकात की जाए। कमेटी ऑडियो लीक पर शफाफ तहकीकात करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड देने या ना देने का फैसला भी इसी कमेटी ने करना है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला मुराद अली शाह से अफगानिस्तान के वज़ीर कॉमर्स नूरुद्दीन अजीज़ी की सरबराही में वफ़द ने कराची में मुलाकात की है। मुलाकात में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि अफगानिस्तान हमारा मुस्लिम बरादर मुल्क है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को पुरअमन और तरक्की करते हुए देखना चाहता है। उन्होंने कहा कि खित्ते में अमन होगा तो तमाम ममालिक तरक्की करेंगे। दोनों ममालिक तिजारत और सरमायाकारी के ज़रिए तरक्की कर सकते हैं। अफगान वज़ीर नूरुद्दीन अजीज़ ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर से बेहतर हो रहे हैं। कराची अफगानी बाशिंदों का दूसरा घर रहा है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के हालात अब बहुत बेहतर हैं। नाज़रीन, एथोपिया ने पाकिस्तान के लिए परवाज़ों का आगाज़ कर दिया है। एथोपिया के हुकूमती कारोबारी और सरमायाकारों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल वफ़द लेकर
पहली परवाज अदीस अबाबा से कराची पहुंच गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और काबीना वज़रा ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर एयरलाइन को वाटर सैल्यूट भी पेश किया गया है। एथोपिया से हफ्तावार 4 परवाजें कराची के लिए चलाई जाएंगी। अहम खबर से नाज़रीन आपको आगाह कर रहे हैं। एथोपिया ने पाकिस्तान के लिए परवाज़ों का आगाज़ कर दिया है। एथोपिया की जानिब से पाकिस्तान के लिए परवाज़ों का आगाज़ कर दिया गया है। एथोपिया के हुकूमती, कारोबारी और सरमायाकारों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक वफ्द पहली परवाज़ अदीस अबाबा से कराची लेकर पहुंच चुका है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और काबीना वज़रा ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस मौके पर इस्तकबाल किया और इस मौके पर एयरलाइन को वाटर सैल्यूट भी पेश किया गया। एथोपिया से हफ्तावार 4 परवाजें कराची के लिए चलाई जाएंगी। एथोपिया ने पाकिस्तान के लिए परवाज़ों का आगाज़ कर दिया है। एथोपिया के हुकूमती, कारोबारी और सरमायाकारों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल वफ्द लेकर पहली परवाज़ अदीस अबाबा से कराची पहुंच गई है और इस मौके पर एयरलाइन को वाटर सैल्यूट भी पेश किया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रहीम यार खान में कच्चा ऑपरेशन को 1 माह मुकम्मल हो गया। इलाके में मुकम्मल मनसूबाबंदी और हिकमत अमली से मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। कच्चा कराची का बेशतर इलाका क्लियर करवा कर जजीरा नुमा कच्चा रजवानी के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया गया। ऑपरेशन में RPO बहावलपुर राय बाबर सईद निगरानी, जबकि DPO रिजवान उमर गोंदल पुलिस फोर्स की क़यादत कर रहे हैं। पुलिस की कच्चे में कार्रवाइयों के दौरान 3 डाकू हलाक, जबकि 28 गिरफ्तार हुए और 5 ने सरेंडर किया। पुलिस ने कच्चा क्रिमिनल्स के दर्जनों ठिकाने तबाह और मिसमार करके नजर आतिश कर दिए। मुजरिमान से बड़ी तादाद में खतरनाक असलहा भी बरामद करके कब्जे में ले लिया गया। पुलिस ने कच्चे के तमाम खतरनाक गैंग्स को पिछाड़ते हुए उनके नेटवर्क भी तहस नहस कर दिए। पुलिस ने कच्चा के क्रिमिनल से क्लियर करवाए गए इलाकों में पुलिस कैंप्स और OP पोस्ट, जबकि इसके साथ साथ अहम रास्तों पर नाकाबंदी पॉइंट्स भी कायम कर रखे हैं। कच्चे में दाखिली और खारजी रास्तों की कड़ी निगरानी की जा रही है। पुलिस की कामयाब कार्रवाइयों से कच्चे के आम आदमी ने सुख का सांस लिया है। DPO रिजवान उमर गोंदल के मुताबिक पुलिस ने हिम्मत, हौसले और जवामर्दी से कच्चा क्रिमिनल्स को कॉर्नर कर दिया है। कच्चे में दायमी अमन के लिए तमाम तर वसाइल और सलाहियतें बरूए कार ला रहे हैं। नाज़रीन, रहीम यार खान में जारी कच्चा ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाली वाहिद खातून पुलिस ऑफिसर ने जुर्रत और बहादुरी की मिसाल कायम कर दी है। कच्चा में असलहे से लेस खतरनाक डाकू से मुकाबला करने वाली खातून पुलिस ऑफिसर से मिला रहे हैं इशफाक अहमद। जनूबी पंजाब के कच्चा में असले से लेस डाकुओं का मुकाबला करने वाली वाहिद खातून पुलिस ऑफिसर ASP दानिया राना, जिसके कैरियर की दूसरी पोस्टिंग रहीम यार खान में हुई, तो उन्होंने हिम्मत हारने की बजाय डाकुओं का मुकाबला करने की ठानी। मैं हमेशा से चैलेंजेस और मुझे हमेशा से था शौक कि मैं फील्ड पोस्टिंग करूं और हमें वैसे भी ट्रेन ऐसे किया जाता है, लीड हमारी ट्रेनिंग होती है और हमारे और बॉयज़ की ट्रेनिंग में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। कच्चा में ड्यूटी देने वाली वाहिद खातून पुलिस ऑफिसर और डाकुओं के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला भी हुआ और वो डाकुओं के कई सहूलतकारों को गिरफ्तार करने में कामयाब भी रही। डाकुओं के साथ तो मेरा बहुत दफ़ा सामना हुआ है। मैं अक्सर जब भी ऑपरेशन होता है मेन में यहाँ आती हूँ और घबराहट और ऐसा कोई इशू नहीं हुआ और वैसे भी फोर्स है, उसे मोटिवेट करना, जब एक फीमेल फ्लोर फ्रंट पे होती है तो अलग ही मोटिवेशन होता है फोर्स के लिए भी, तो इतना मेरे लिए कोई इशू नहीं था। रेदर आई वुड से कि मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। ASP दानिया राना कच्चा के इलाके से नकल मकानी करके आने वाली खवातीन की एहसन तरीके से इस्लाह भी कर रही हैं। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। शहदाए पाकिस्तान को सलाम। वतन अजीज के लिए जाने कुर्बान करने वालों के खानदानों को कौम का खिराज अकीदत। गुलजार अहमद नडर सिपाही थे जिन्होंने 15 अप्रैल 2018 को कुर्म एजेंसी में शहादत का बुलंद रुतबा पाया। सिपाही गुलजार अहमद शहीद ने सौगारान में वालदैन, 3 बेटे और बेवा छोड़े। वफा की तस्वीरों तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। सिपाही गुलजार अहमद वो बिल्कुल नेक माण्हू ऐं उन खां शफ़ीक़ माण्हू आहे ऐं बिल्कुलु दिलेर माण्हू आहे ऐं उन खां पोइ असांजी जेका ई ख़ानदान आहे माना उनजे मथां असांजी जेका ई फ़ौज आहे माना उनजे मथां असां बि सिर ॾेई था सघूं। असांखे ख़बर ईअं पई यूनिट में ख़बर पई असांखे कॉल आई। मूंखे ॿुधायां थी त नंढड़ो मुंहिंजो पंहिंजो शौक़ु
पंहिंजी स्कूल जी हुयसि। स्कूल खां पोइ वॾो जो पंहिंजे दिलि जो शौक़ु इहो हलियोसि त मां फ़ौज में वेंदुमि। मां पंहिंजी दिलेरी जेकी आहे उहा करे ॾेखारींदुमि। जेकी बहादुरी आहे उहा पंहिंजी पूरी दुनिया ॾिसंदसि। हा त ईंदो असांजे लाइ ईद थी वेंदी, ख़ुशी हूंदी, पंहिंजे बच्चनि सां ख़ुशी कंदो, चवंदो पुटनि खे पढ़ाईंदुमि, मां जेल में हूंदा बहादुरी में थी। हा पंहिंजो प्यारु कंदो पंहिंजे बच्चनि सां, मां सां कुर्बाइतो हुयो ॾाढो। बाक़ी असांखे ॾिठो हुयोसीं ॾाढो कुर्बाइतो, प्यारो, ॾाढो ख़्यालु रखंदो। न तुम्हारी शुजाअत पे झूमते वो मिल बैठे एक दूसरे की गलतफहमियां दूर कर दें, तो फिर जनाब कच्चे के डाकू का क्या गुनाह है? कच्चे के डाकू को भी आईजी पुलिस से बैठना चाहिए, क्योंकि अभी तक वहाँ जो ऑपरेशन हो रहा है, फिर उस ऑपरेशन के नतीजे में अगर मुकम्मल नतीजा नहीं निकल पाया और इसी तरह ज़बान पार्क में पेट्रोल बम फेंकने से, गलेल चलाने से उसको नहीं पकड़ा जा सका, तो फिर वो बात दुरुस्त कह रहा है कि एक आर्मी चीफ से वो बैठ जाए और कच्चे का डाकू आईजी पंजाब से बैठ जाए। मगर ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि अगर ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। मसले का हल ये है कि कब तक फैसलों से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता रहेगा और हम ये कहेंगे चलो मिट्टी पाओ आगे चलें। ये मिट्टी पाओ आगे चलने से काम नहीं बनेगा। आप देखें कि एक फैसला आया, जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी पे लटका दिया गया और फिर कहा गया क्योंकि अब वो वापस नहीं आ सकते लिहाजा आगे चलें। आपने दूसरे प्राइम मिनिस्टर को ताहयात नाअहल कर दिया, नवाज शरीफ को, और आप ये कह रहे हैं क्योंकि वो फैसला आ चुका, मिट्टी पाओ आगे चलें। आज जो बात नून साहब कर रहे हैं, मुझे ये बताया जाए कि ये पार्लियामान जो है ये आइन कानून बनाती है और इसकी कोख से अदारे जो हैं रहनुमाई लेते हैं, अदारों को रोशनी मिलती है, अदारों के कवानीन बनते हैं। मुझे ये बताया जाए कि इस हाउस की अगर कोई इज्जत नहीं है, इस हाउस की कोई अहमियत नहीं है, तो फिर इस हाउस से बनने वाले कवानीन जो हैं उन पर आप ये कहते हैं तौहीने अदालत, तौहीने फलां अदारे की हो गई। और हमें तो कभी बंदूक वाले पकड़ लेते हैं और कभी जो है वो हथौड़े वाले पकड़ लेते हैं। ये जनाब स्पीकर मेरी गुजारिश होगी कि माजी में भी ऐसा नहीं हुआ और एक दफा जो हुआ था वो भी स्पीकर साहब ने जो रिकॉर्ड पेश किया था उन्होंने भी तौहीने पार्लियामान किया था। और आज भी कंप्रोमाइज ना किया जाए, जो पार्लियामान ने फैसला दे दिया है उसी को, फैसले को मानते हुए उसी पर भी आप भी रूलिंग दें बराए मेहरबानी, वरना ये कहीं काम रुकेगा नहीं। होगा ये कि फिर पाकिस्तान के अंदर जो आज 75 सालों में हो रहा है और फिर हम रोते हैं कि पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी हो गई। आज स्टैंड लें, इस कवानीन जो बनते हैं यहाँ पे उन पर आप कस्टोडियन हैं, आप अगर उस पे स्टैंड नहीं लेंगे तो इस यहाँ बिल पास जो होते हैं फिर वो कौन उसका दिफा करेगा। बहुत शुक्रिया। मोहतरम गुलाम अली तालपुर साहब। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बहुत से फैसलों से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा, जो फैसला पार्लियामान ने दिया है उसी को मानना पड़ेगा। इस मौके पर उन्होंने तौहीन पार्लियामान से मुतल्लिक तहरीक जो ऐवान में पेश की गई उस पर भी कहा। उन्होंने कहा कि ये तहरीक राना कासिम नून की जानिब से पेश की गई है। पार्लियामेंट के तौहीन के मुर्तकिब को सज़ा मिलनी चाहिए। पार्लियामेंट का तकद्दुस बहाल होगा तभी वहाँ पर बनने वाले जो कवानीन हैं उनका भी तकद्दुस जो है वो बहाल होगा और उन पर अमल भी किया जा सकेगा। आपको ये भी बताते चलें कि पार्लियामेंट के अंदर तौहीन पार्लियामान से मुतल्लिक तहरीक ऐवान में पेश की गई है। आपको बताएं कि तौहीन पार्लियामान से मुतल्लिक तहरीक ऐवान में पेश की गई।
the sectors are very much forward-looking. We're trying to improve day by day our ease of doing business, and our economy is advancing, growing, and one of the fastest growing economy in the sub-Saharan Africa, even during this difficult period of the global economic downturn, recession, and global slowdown of the economic activities. Our economy has been growing, in a fast manner, and that is a plus for the investors. And the macroeconomic stability is well, in this regard, the opportunities are huge. We heartily invite you to consider Ethiopia as the best place to do business and to connect with Africa and to expand and to re-export and also participate in the industrial development policy of Ethiopia in the part of that initiative, and considering Ethiopia for the regional market, particularly with a huge population, the largest population, with huge domestic internal market, and using those opportunities, it will offer an excellent platform for the Pakistani business to consider Ethiopia as a best investment destination. So our investment commission is steadfast in receiving, expediting investment proposal, and the related ministries, the industrial park, and other investment-related government agencies are highly committed to provide you. And the political commitment is there. And we really look forward to expand our trade relation. And also increasing Ethiopian product, increasing and, avoiding trade blocks. One of my visits during 2019 is to lift up the ban on red kidney bean that was imposed on Ethiopian export. And immediately the government has lifted that ban, and now the smoothing up, facilitating trade is very, very important, and also increasing import of Pakistani product is our key area that in terms of we have a technological advantage with regard to pharmaceutical manufacturing product. We're very much keen to expand that trade. So balancing the trade negativity is very important, working on the business community to export more and avoiding defaults. That is very important in trade relation. And smoothing up our trading facilitation, our trading practices is very important. I thank you, Ambassador Abbas, for your contribution, and our Ambassador Jamal for energizing our community. You gave a new impetus for our business community to consider and to expand those business opportunities, and also the leadership here, the Chamber of Commerce people, and Ibrahim for your contribution as well. And I should applaud all of you who supported this initiative to happen and to expand. I thank you very much. Long live Ethiopia-Pakistan relation. I now open this business forum officially launched. Thank you very much. एथोपिया के वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारिजा तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इम्पोर्ट को भी बढ़ाना होगा और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान की इम्पोर्ट को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। पाक एथोपियन बिजनेस फोरम की तकरीब कराची में इस वक्त जारी है नाजरीन, जिससे CEO ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ज़ुबैर मोतीवाला ने भी तकरीब से खिताब किया, जबकि दूसरी जानिब से वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारिजा तकरीब से खिताब कर रहे थे। एथोपिया के
नाज़रीन, खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन, शाहिद इमरान मार्त और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जहलम नासिर महमूद बाजवा ने शहीद SSP मोहम्मद अशरफ मार्त की 26वीं बरसी के मौके पर उनकी कब्र पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी और गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। SSP अशरफ मार्त को 6 मई 1997 को सुबह गुजरावाला में नामालूम मुलजिमान ने फायरिंग करके शहीद कर दिया था। डिप्टी कमिश्नर और DPO जहलम ने शहीद को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि SSP मोहम्मद अशरफ मार्त शहीद एक बहादुर और निडर पुलिस ऑफिसर थे जिनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। शोहदा कौम के मोहसिन और महकमा पुलिस के माथे का झूमर हैं। पंजाब हुकूमत ने मोहम्मद अशरफ मार्त शहीद की जुर्रत और बेमिसाल बहादुरी के एतराफ में गुजरावाला में पुलिस लाइन्स को उनके नाम के साथ मंसूब कर दिया। 8 मई 1991 मकबूजा कश्मीर की तारीख का वो सियाह दिन है जब जालिम भारतीय फौज ने निहत्ते कश्मीरियों के खून से होली खेली है। KMS के मुताबिक 8 मई का दिन श्रीनगर के इलाके खानियार में पीर दस्तगीर साहब की दरगाह के करीब बेगुनाह कश्मीरियों के हौलनाक कत्लेआम की भयानक याद ताज़ा करता है, जब भारतीय पैरामिलिट्री, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों ने हज़ारों अफराद के मजमे पर फायरिंग करके 18 बेगुनाह शहरियों को शहीद कर दिया। शहीद होने वालों में एक शीरखार बच्चा और उसका वालिद भी था। श्रीनगर में G20 इजलास के इनकाद के मोदी हुकूमत के गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ 22 मई को मकबूजा जम्मू और कश्मीर और आज़ाद जम्मू और कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। बैरून मुल्क मुकीम कश्मीरी भारत के खिलाफ रैलियां और एहतजाजी मुजाहिरे करेंगे। हड़ताल और एहतजाज की कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और आज़ाद जम्मू और कश्मीर की क़यादत ने मुश्तरका तौर पर दी है। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताएं कि G20 की आड़ में मोदी की खून से खेली जाने वाली होली सब पर आश्कार हो चुकी है। मोदी सरकार की बेईमाना इंसान दुश्मन कार्रवाइयों ने कश्मीरियों को अंधा करने की ठान ली है। मजहबी इज्तिमा, त्योहारों और जनाजों पर भी पैलेट गन्स का अंधाधुंध इस्तेमाल जारी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक 2019 से 2021 के दरमियान 6221 कश्मीरी पैलेट गन्स की वजह से शदीद जख्मी हुए, जबकि 782 बीनाई खो बैठे हैं। के लिए और अदारे की रेट जो है उसको कायम करने के लिए हमें जो मुनासिब कानून साजी है वो करनी चाहिए। कानून साजी, जनाब स्पीकर, हमेशा कहते हैं कि लॉज आर मेड फॉर पोस्टेरिटी। वो किसी एक इशू को या किसी एक सिचुएशन को डील करने के लिए नहीं होते, बल्कि दायमी होते हैं कवानीन, और फिर वक्त के मुताबिक जब उन्हें तब्दील करना हो और ये इख्तियार कि कौन सा कानून बनाना है और कौन से कानून में तब्दीली करनी है, ये हक़ सिर्फ़ और सिर्फ इस ऐवान का है। इस ऐवान ने ये हक़ बिलाशुबा अपनी स्टैंडिंग कमेटीज़ को दे रखा है, और उसके पीछे भी जो विज़डम थी वो ये थी कि कई दफ़ा जब आप छोटे ग्रुप में बैठते हैं तो ज़्यादा संजीदगी के साथ क्लॉज बाय क्लॉज उसका मुताला करके उसमें जो कोई कमी बेशी है वो निकालते हैं और उसको ज़्यादा बेहतर शक्ल में ला के ऐवान के सामने पेश करते हैं। एक चीज़ तयशुदा है कि कानून को पास करना है या मुस्तरद करना है, वो इख्तियार सिर्फ इस ऐवान का है और इसी ऐवान का रहेगा। और इस ऐवान से बाहर जिन अदारों के पास इसकी तशरीह का इख्तियार है, उनसे भी मैं इस ऐवान के तवस्सुत से ये इस्तदा करूँगा कि वो भी अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए जो इस ऐवान की टेरिटरी है, इस ऐवान का जो इख्तियार है, इस ऐवान का जो तकद्दुस है, उसका ख्याल रखें। क्योंकि अदारे अगर एक दूसरे की हदूद में दाखिल होंगे तो उससे केओस पैदा होता है। केओस पैदा होने से रियासत जो है उसकी कमज़ोरी की निशानी होती है। और बिलाशुबा पाकिस्तान की पार्लियामेंट अपने इख्तियारात और अपने हकूक़ से आशना भी है और इसकी हिफाजत करना भी जानती है। तो ये कहीं पे गलतफहमी नहीं रहना चाहिए। सारे दोस्तों की आरा आने के बाद मैं ख़ुद सर ये रिक्वेस्ट करूँगा सब दोस्तों से कि ये एक सीरियस एफर्ट है, ये एक इतना अच्छा कानून बनने जा रहा है जो कि इस अदारे के जो फंक्शंस हैं उनको तक़वियत देगा। तो ये काम हम उजलत में ना करें। सेशन चल रहा है, सेशन इन प्रोग्रेस है, रेलेवेंट स्टैंडिंग कमेटी को भेजिए, मुझे हुक्म करेंगे, मैं भी उनके साथ बैठूंगा, मेरी टीम उनके साथ बैठेगी। हम इसको एक खूबसूरत और मजबूत शक्ल में लेके आपके सामने रखेंगे और उस रोज़ इख्तियार आपका होगा कि आप उसको शिकवार देखने के बाद अगर कोई उसमें तब्दीली सजेस्ट करते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। अगर वो मंजूर होना है या मुस्तरद करना है तो ये राइट सिर्फ़ और सिर्फ इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान का है। रूल्स और प्रोसीजर्स बनाए इसलिए जाते हैं कि जो स्मूथ फंक्शनिंग है वो इदारे की हो।
اور ٹریڈیشنلی ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں چیزیں فائن ٹیون ہو کے بہتر ہو کے آتی ہیں. تو اس استدعا کے ساتھ میں بالکل سپورٹ کروں گا جو منسٹر فار اسٹیٹ فار لا اور وزیر پارلیمانی امور نے کہا, اور میں شکر گزار ہوں رانا قاسم نون صاحب کا جو موور ہیں اس تحریک کے, کہ انہوں نے بھی کہا کہ یہ ایک مناسب ہوگا سبجیکٹ ٹو اپروول آف دس ہاؤس. اگر آپ سب دوست میری بہنیں بھائی مناسب سمجھیں تو یہ اچھا ہو جائے گا, بہتر شکل میں آپ کے سامنے آئے گا. اور محسن لغاری صاحب یا محسن لغاری صاحب جہاں سے اس کی تشریح کروانا چاہیں گے کل کو, وہاں پہ بھی یہ چیز اچھی رہے گی کہ آپ نے اپنا فرض ادا کیا اور قانون کے مطابق ادا کیا. بہت شکریہ. ناظرین, وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ قانون سازی اور ترمیم کا اختیار صرف پارلیمنٹ کے پاس ہے. ادارے ایک دوسرے کی حدود کا خیال رکھیں تو ملک کے اندر کیوس برپا نہیں ہوگا. ناظرین, آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے, جس میں اب سے کچھ لمحے پہلے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ قانون سازی اور ترمیم کا اختیار صرف پارلیمنٹ کے پاس ہے اور پارلیمنٹ اس کا دفاع کرنا بھی جانتی ہے. کسی بھی قانون کو پاس کرنا یا مسترد کرنا یہ صرف پارلیمان کا اختیار ہے. پارلیمان اپنے حقوق کی حفاظت بھی کرے گی اور اگر ادارے ایک دوسرے کی حدود کا خیال رکھیں تو یہ پاکستان کے حق میں مفید ہوگا. پارلیمانی کمیٹی توہین پارلیمان پر کسی بھی ریاستی یا حکومتی عہدیدار کو طلب کر سکے گی. ناظرین, ہمارے نمائندے نمود مسلم اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہوں گے. ان سے اس حوالے سے بھی ہم مزید تفصیلات شامل کریں گے. فی الحال آپ کو یہ بتائیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے, جس کے اندر اب سے کچھ دیر پہلے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ جو ہے وہ اظہار خیال کر رہے تھے, جبکہ اس سے قبل ایک تحریک بھی ایوان کے اندر پیش کی گئی ہے. اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں کہ رانا قاسم نون نے یہ تحریک پیش کی ہے. نمود مسلم ہمارے ساتھ لائن پر اس وقت موجود ہیں, ان سے اس حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں. نمود, ہمیں بتائیے گا, ایک تحریک ایوان کے اندر پیش کی گئی ہے, مزید کیا اپڈیٹس ہیں؟ ایک تحریک جو ہے آج ایوان میں پیش کی گئی ہے جو کہ رانا قاسم نون نے پیش کی ہے. یہ جو قومی اسمبلی کی استحقاق کمیٹی ہے اس کے چیئرمین بھی ہیں. یہ جو تحریک پیش کی گئی ہے یہ ہے کہ ایک بل منظور کیا جائے جس کے تحت کنٹمپٹ آف پارلیمنٹ کا, جس کو کہیں گے کہ ایکٹ بنایا جائے کہ کوئی بھی اگر پارلیمنٹ کی بات کو نہیں مانتا یا اس کی حکم عدولی کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے, کیونکہ پارلیمان سب سے جو ہے سپریم ادارہ ہے اور اس سپریم ادارے کی بات کو نہ ماننا اور اس پہ عمل نہ کرنا یقینی طور پر قانون کی خلاف ورزی ہے. اور یہ اگر دیکھا جائے تو دوسرے ترازو میں دیکھا جائے تو یہ آئین کی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے. اس حوالے سے یہ جو ایک مجوزہ جسے کہیں گے کہ ایک بل موجود ہے, مجوزہ بل میں خاص طور پر جو یہ ہے کہ ایک کمیٹی بنائی جائے گی جو کہ ہر معاملے کو دیکھے گی. جس طرح استحقاق کمیٹی کام کرتی ہے اسی نوعیت کی ایک کمیٹی یہ ہوگی اور اس میں جو ارکان ہے وہ 50% حکومت سے اور 50% اپوزیشن کے ارکان ہوں گے. آج جو اس کمیٹی پہ ابھی بحث ابھی پارلیمان میں اس پہ بحث جاری ہے جس میں مختلف ارکان کی مختلف آ رہا ہے. کچھ ارکان کا کہنا ہے کہ اس کو آج ہی منظور کیا جائے, جبکہ بہت سے ارکان ہیں جیسے شہادت اوان جو کہ وزیر مملکت ہیں, اعظم نذیر تارڑ وزیر قانون ہے, اور اس کے علاوہ دوسرے اہم ارکان جو قومی اسمبلی کے جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کو پھر بھی کمیٹی میں بھجوایا جائے تاکہ متعلقہ کمیٹی اس کو ایک دفعہ دیکھے اور اس میں کوئی بھی اگر کوئی سکم اگر ہے بھی تو اس کو دور کیا جائے, اس کو بہتر انداز سے کیا جائے. کیونکہ قومی اسمبلی کی یا یہ پارلیمان کی روایت رہی ہے کوئی بھی بل جب ایوان میں پہلی دفعہ انٹروڈیوس ہوتا ہے یا پیش کیا جاتا ہے یا متعارف ہوتا ہے تو اس پہ جو تفصیلی بحث ہے وہ ہمیشہ کمیٹی میں کی جاتی ہے. ابھی ابتدائی طور پر قومی اسمبلی میں یعنی کہ آج اگر بل کی منظوری ہو جاتی ہے تو یہ یا تو یہ کمیٹی کو بھجوا دیا جائے گا. کمیٹی کو بھجوانے کے بعد جیسے ہی وہاں سے آئے گا تو یہ منظوری کے بعد یہی جو بل ہے یہ سینٹ میں منظوری کے لیے جائے گا. جی صحیح, بہت شکریہ. نمود مسلم ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے اور اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. ناظرین, کنٹمپٹ آف پارلیمان کے حوالے سے جو ہے وہ ایک تحریک پیش کی گئی ہے جس کو جو ایوان کے جو نمائندان تھے ان کی حمایت حاصل رہی. وفاقی وزیر احسن اقبال سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں. In University Grants Commission, which was the older institution of Higher Education Commission. So we had a meeting with Vice Chancellors to set out new vision for higher education 2010. And in that document, one of the recommendations was to set up HEC. But what is more important, that when I asked them that how many PhDs do we have in science and technology fields in our universities, I think the answer was around 350 or odd some number around that.
But I was more surprised when I learned that in next 5 to 7 years, about 60 to 70% of that faculty was about to retire. So at that time, under Vision 2010, we started an initiative of 5,000 PhD scholarships by the name of Teachers Researchers Overseas Scholarship Scheme, and another 5,000 for indigenous PhDs to overcome this shortage of highly qualified human resource in our universities. In '99, there was martial law, but luckily, this program survived that political change and it continued. As a result, today, due to continuity of that program, we have thousands of PhDs in science and technology in our academia and in research. But that is not sufficient. I think now time has come that we connect this capability with the development or economy of our country and society. And therefore, the new vision we have for our higher education sector places big premium, and it is actually one of the evaluation criteria of the universities, that how much of innovation they produce, but also what is the extent and strength of academia-industry linkage. Because the development of technology journey that has taken place in the world has different models. The most successful model is of United States, where every technology that was developed in defense sector or security area was also put to commercialization. For example, the web we have today, it started in the defense sector. But then look how web has transformed the entire human society and economy. Similarly, microwave technology started as a defense technology. But see how microwave technology was put to use in telecommunication and in other areas. Vacuum technology is also a defense technology. But today, vacuum technology is in every household in the shape of a vacuum cleaner. And there are products made with that technology. So therefore, how this fusion of technology, research, and commercialization takes place in any society determines the success of that society. And I think all the research, all the knowledge that sits in our laboratories, in our universities, time has come that we should connect this with the private sector, or we should create an ecosystem of startups so that this knowledge can be fully utilized. With this vision, under Vision 2025, we started to develop our higher education sector to become the space of innovation and future development of Pakistan. The funding for universities was increased. Many new research centers were set up, and I am very honored to say that under Vision 2025, in 2017-18, we set up national centers of technology, which were, although little late, but much ahead of maybe of our times in our country. At that time, people did not fully appreciate what were those initiatives. National Center for Artificial Intelligence, which is housed here in NAST. National Center for Cyber Security, which is housed in Air University. National Center for Automation and Robotics, which is again housed in one of the constituent colleges of NUST in EME, and then National Center for Big Data and Cloud Computing, which is housed in LUMS. But the beauty of these centers was that each of these centers was affiliated with 8 to 10 laboratories of different universities in the country. So the idea was to network all the capability we have in shape of
either human resource or the laboratory or equipment, and that should become a full one body of capability through this network and work in congruence so that we can achieve best results. And I'm very happy to say that these centers have done remarkable work in last 4 years, and I look forward that they continue this journey and we can see more breakthroughs in future. Similarly, this year we are inshallah launching 3 new centers, and a center on manufacturing. As you know that manufacturing is also undergoing a major transformation with the new technology opportunities that are coming. So this will be a center that will look at our current manufacturing clusters and see that how this can be linked with the new technologies to give us a competitive advantage and keep us in markets and not throw us out of the markets. The second national center we are starting in the next financial year is certainly in the very area we are discussing, quantum computing. Now this quantum computing is also an area, as you all know, that is going to revolutionize the whole computing landscape. And I was saying this in a cyber security task force meeting that we held a few days ago, that all the cyber security that we have today, and we feel very confident with the firewalls that we have created, they will look like a bicycle before an intercontinental missile. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लिए मैं हूं आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन, मौसम की खबरों में सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क के बेशतर इलाकों में रवा हफ्ते दिन के दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफे का इम्कान है। इस दौरान मुल्क के जुनूबी इलाके गर्मी के ज़ेर असर रहेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक फ़ज़ा में हवा के ज़्यादा दबाव के बायस आने वाले दिनों में मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों खुसूसन जुनूबी इलाकों में कल से 13 मई तक दिन के दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफे का इम्कान है। सिंध, जुनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दिन का दर्जा हरारत 3 से 5, जबकि बालाई और वस्ती पंजाब, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दिन का दर्जा हरारत 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज़्यादा रहने का इम्कान है।